قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے حضور آپ جب آتے ہیں، یہاں بیٹھے سلیم صاحب بتا رہے تھے کہ طبیعت کافی خراب تھی، اور میں نے کہا کہ میں ضرور چرچ جاؤں گا، گاؤں گا بھی، اور بڑی خوبصورت بات بیٹھے کر رہے تھے کہ میں جب بھی چرچ جاتا ہوں، ورشپ کرتا ہوں، تو میں اپنے دل میں یہ سمجھ کے کرتا ہوں کہ شاید یہ میرا آخری دن۔ اور سچ یہ ہے، ہم نہیں جانتے کہ نیکسٹ ڈے ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، اس لیے اب جب چرچ آتے ہیں تو خدا کے حضور اپنے آپ کو تیار کر کے آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دن ہی آپ کے لیے برکت کا دن ٹھہرے۔ آپ چرچ آئیں، اور یاد رکھیے جب آپ چرچ آنے کی تیاری کرتے ہیں، آپ کو سیٹرڈے والے نائٹ ہی اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ کل سنڈے ہے، اور آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو مینٹین کرنا ہے۔ کئی دفعہ جب چرچ کی باری آتی ہے، گھر کا ماحول بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ڈسٹرب کن وجہ سے ہو جاتا ہے؟ کئی دفعہ کپڑوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کئی وجہ ہدیے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کئی دفعہ گھر میں آپس میں بہن بھائیوں کی چپلس ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں آپ جائیں، ہماری اپنی برکت ہے۔ یعنی کئی دفعہ ہم اپنے اپنے گھروں میں جب چرچ کی باری آتی ہے تو ہمارے اندر یہ اعتراضات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے آپ سیٹرڈے والے دن اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھر کے ماحول کو ریڈی کریں، تیار کریں، اور بہترین ماحول بنائیں۔ اور اچھا ہے کہ آپ سیٹرڈے والے دن ہی اپنے گھر کے سارے کام کاج کریں، اور اپنے کپڑے پریس کر کے رکھیں، تاکہ آپ کو مارننگ میں جب چرچ کے لیے صرف ناشتہ کریں، ریڈی ہو اور چرچ آئیں۔ پرابلم یہ ہے ہماری مینجمنٹ ٹھیک نہیں، کیونکہ جس دن اتوار ہوتا ہے مارننگ میں ہی ہمیں ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ مارننگ میں ہم سارے کام یاد کرتے ہیں، نہیں اتوار ہے، چھٹی ہے، لیٹ اٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یاد رکھیے سیٹرڈے والے دن آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ لگتا نہیں، بولنے نہیں دے، کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے کپڑے کس دن پریس؟ بھئی آپ نے وہی کپڑے ہیں جو سنڈے والے دن پریس کرنے ہیں، ہے نا؟ تو وہی اچھا ہے کہ آپ ہفتے والے دن سارے گھر کے کپڑے اپنے اپنے پریس کر لیں۔ چلے ایک نہیں تو اپنے اپنے کر لیں۔ اس لیے اپنی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، تاکہ آپ اتوار کو جلد خداوند کے حضور میں جائیں اور عبادت کریں۔ بڑا خاص وقت آج ہمارے لیے ہے کہ آج عید پینتیکوست کی عبادت ہے۔ کون سی؟ اور کتنے اس تجربہ کو جانتے ہیں؟ بہت سارے لوگ عید پینتیکوست کے تجربہ کو نہیں جانتے، بہت سارے لوگ عید پینتیکوست کے بارے میں نہیں جانتے، پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ کیوں خداوند کو روح القدس کی ضرورت پڑی؟ آپ یاد رکھیے وہی شاگرد جو ہے وہ 3 بار 50 دن پہلے یسوع مسیح کا انکار کر رہا ہے۔ وہی شاگرد جو ہے جو یسوع مسیح کا چہیتا ہے، وہ یسوع مسیح کا شاگرد جو یہ کہتا ہے یسوع تو جانتا ہے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میری محبت تیرے ساتھ ہے، میرا پیار تیرے ساتھ ہے، میری وفاداری تیرے ساتھ ہے۔ اور اسی لمحے یسوع مسیح کے لفظ یہ ہے کہ تو میرے لیے 3 بار انکار کرے گا۔ کتنی بار؟ 3 بار انکار کرنے والا پرسن 50 دن کے بعد روح القدس کی رانانتی کے بعد، روح القدس کی رسیو کرنے کے بعد، وہ شخص جو شاید تھوڑے لوگوں کے اندر یسوع مسیح کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ لفظ بولا گیا تم بھی انہی میں سے ہو، اور کترا کر جا رہے ہیں، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے یہی وہ پرسن جب روح القدس کی حضوری آئی، عید پینتیکوست کا دن آیا، اور یہی
शख्स है जो सामने लाखों की तादाद, हजारों की तादाद में खड़ा होकर यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहा है। ये तजर्बा है रूहुल कुदस का। यानी रूहुल कुदस से पहले खौफ है, दिलेरी है, और वो प्रीचिंग का लेवल नहीं है, वो वर्शिप का लेवल नहीं है। याद रखिए, आप जितने वर्शिप करने वाले हैं, आप जितने मीटिंग प्रेसाइड करने वाले हैं, आप जितने कलाम सुनाने वाले हैं, आप जितने दुआ करने वाले हैं, आप जितने चर्च जाने वाले हैं, आप अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि जब तक रूहुल कुदस नहीं आपकी जिंदगी के अंदर दिलेरी नहीं, जब तक रूहुल कुदस नहीं आपकी जिंदगी के अंदर तजर्बात नहीं, जब तक रूहुल कुदस नहीं आपकी जिंदगी के अंदर नेमतें नहीं, जब तक रूहुल कुदस नहीं आप अच्छी प्रीचिंग नहीं कर सकते, जब तक रूहुल कुदस नहीं आप अच्छा गा नहीं सकते, जब तक रूहुल कुदस नहीं शायद आप गा तो अच्छा रहे सुरों के साथ, लय के साथ, लेकिन जो हजूरी रूहुल कुदस की वजह से होगी वो आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है। आपकी जिंदगी के अंदर दिलेरी कब आएगी? बोलना डरो नहीं, दिलेरी कब आएगी? जब रूहुल कुदस आएगा। एक सवाल किया जाता है, रूहुल कुदस सबके पास है। चले, मैं इस बात पर एग्री हूँ, रूहुल कुदस सबके पास है, लेकिन रूहुल कुदस का तजर्बा किसके पास है? रूहुल कुदस को मौका कौन देते हैं? रूहुल कुदस का मौका किसने देना है? हमने देना है। भाई चीजें हमारे पास हैं, बरकतें हमारे पास हैं। आप में से एवरी पर्सन जो चर्च में बैठा है या जो अपने घरों के अंदर बैठा है, एवरी पर्सन के पास खुदा ने आपको तरह तरह की नेमतें दी हुई हैं, लेकिन आप अपनी नेमतों को इस्तेमाल नहीं करते, आप अपनी बरकतों को इस्तेमाल नहीं करते। यही वजह है, इसका मतलब रूहुल कुदस का तजर्बा आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है। आप रूहुल कुदस के बारे में जानते हैं, आप रूहुल कुदस के हुजूरी को तब महसूस करेंगे जब आप अपने आप को खाली करेंगे। और बहुत सारे लोग अपने आप को रूहुल कुदस से भरना पसंद नहीं करते। अगर आप उनको देखें, वो चीज़ों से भरे हुए हैं, है ना, अंदर से भी और बाहर से भी चीज़ों से भरे हैं, लेकिन रूहुल कुदस से नहीं भरे। हमें ज़रूरत है हम रूहुल कुदस से भरे। कितनी चीजें इधर पेंटिकोस्ट पर भी जरा अपने तजर्बे के लिए पढ़िएगा, जरा अमाल की किताब है और उसका दूसरा बाब और तरफ बात जरा पहली वर्ष से पढ़िएगा। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। वो सब एक जगह जमा थे। इससे पहले यहाँ पर स्टे करें, ईद पेंटिकोस्ट पर जो पहला काम ये हुआ था कि वो सारे एक जगह जमा थे। ईद पेंटिकोस्ट पर जो पहला काम हुआ वो ये था, यीशु मसीह ने अपना वादा पूरा किया। वो वादा ये था कि जब उसने आसमान पर उठाए जाना था, और आसमान पर जब उठाए जाना था तो लेकर सारे शागिर्द उनको देख रहे थे और जमात उसको देख रही थी, और देखते देखते वो जब जिंदा आसमान पर उठाए जा रहे हैं और उनकी आंखें आसमान की तरफ यीशु मसीह को जाते हुए देख रही है, और देखते देखते बादलों ने यीशु मसीह को क्या कर लिया? छुपा लिया। और जाते जाते यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए कौन सा मददगार? मुझे बोलो, कौन सा मददगार? दूसरा मददगार भेजूंगा। यीशु मसीह ने अपनी उस जमात के साथ जो उसके पीछे चलने वाली थी, जो उसके साथ चलने वाली थी, अपनी जमात के साथ ये वादा किया था। और वादा ये था, आसमान पर अभी पहुंचे नहीं है, आसमान पर जाने से पहले मुबारक मुंह से लफ्ज़ ये निकले थे कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ के जाऊंगा, और मैं तो अब जाता हूं और मैं तो उठाया जाऊंगा, मैंने तो चले जाना है, मैंने आसमान पर जाना है, लेकिन इससे पहले कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक वादा किए जाता हूं, और वो वादा ये है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा। यानी
یعنی اس کا مطلب اس نے دن ٹھہرائے تھے کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. اور کب بھیجوں گا؟ ہے نا؟ کتنے دن کے بعد بھیجوں گا؟ ہے نا؟ اگر اس پہرے کو دیکھا جائے تو عید پینتیکوست کتنے دن بعد آیا؟ کتنے دن بعد؟ آسمان پر اٹھائے جانے کے 10 دن. اور اگر اس کو آگے پڑھیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن بہرحال آپ ذرا اس بات کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک ذمہ داری کو پورا کیا. یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق. اور جماعت نے کیا کیا تھا؟ جماعت ساری کیا تھی؟ ایک جگہ جمع تھی. یعنی اس کا مطلب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کتنے پرسن ہو گئے؟ 120 لوگ. میں نے پہلے بھی بتایا اس کا مطلب 120 لوگ. اور سوچیں کتنی ہوگی؟ 120 لوگ. اور سوچ کتنی ہوگی؟ 120 لوگوں کی سوچ فرق ہے نا؟ دماغ فرق. ہر ایک کا دماغ فرق ہے. لیکن باری جب یسوع مسیح کی آئی، باری جب یسوع مسیح کے اس حکم کی آئی تو سب کی سوچ یونٹی کے اندر ایک ہو گئی ہے. 120 لوگوں کی جماعت، ان کی سوچ کیا ہو گئی ہے؟ ایک ہو گئی ہے. بھئی آج چرچ کے ساری جماعت کی سوچ ایک کیوں نہیں ہوتی؟ فرق کیا ہے؟ چرچ کی جماعت کلیسیا کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 پر اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا چرچ ترقی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے چرچ میں روح القدس کی حضوری آئے، اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں روح القدس کی نعمتیں ملیں، تو ضروری ہے چرچ کو ایک سوچ ہونے کی ضرورت ہے. چرچ کو کیسا ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا آج کا چرچ ایک سوچ کے ساتھ چرچ آتا ہے؟ کیا آج کی کلیسیا ایک سوچ لے کر چرچ میں آتے ہیں کہ خداوند ہمیں دوسروں کے کپڑے نہیں دیکھنے، ہمیں دوسروں کی جوتیاں نہیں دیکھنی، ہمیں دوسروں کے ڈیزائن نہیں دیکھنے، ہمیں دوسروں کی چیزوں کو نہیں فالو کرنا، ہمیں دوسروں کی ورشپ پر جالس نہیں ہونا، ہمیں دوسروں کے سٹائل کو نہیں دیکھنا. شاید کوئی گاڑی پر آ رہا ہے، شاید کوئی رکشے پہ آ رہا ہے، شاید کوئی پیدل آ رہا ہے، شاید کوئی بائک پر آ رہا ہے. اور یہ ڈزنٹ میٹر. خدا کو آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس چیز پر چل کر خدا کے پاس آ رہے ہیں. خدا کو آپ کی سوچ کی ضرورت ہے کہ آپ کون سی سوچ لے کر چرچ میں آ رہے ہیں. آمین. اس لیے چرچ جب آتے ہیں تو آپ کی سوچ صرف ایک ہونی چاہیے کہ میں چرچ جاؤں گا تو روح القدس کے حضوری میری زندگی کے اندر کام کرے گی. آمین. یہ سوچ رکھے ہے کہ میں نے چرچ میں جانا ہے اور میں نے اپنے چرچ کے ساتھ جا کر جب ورشپ کی جا رہی ہوگی میں نے یونٹی کے ساتھ چرچ میں ورشپ کرنی ہے. کوئی میری اچھی آواز نہیں ہے لیکن یاد رکھیے آپ گا کر تالی بجا کر یونٹی کا اظہار کر سکتے ہیں. میں بڑے لوگ دیکھ رہا تھا جب ورشپ ہو رہی تھی دوران ورشپ کئی یعنی داندی ہنج کٹے سی جو میں دندلی پہلے ہے نا. آپ چرچ اس لیے آتے ہیں بوتھا بنا کے بیٹھے رہیے. بھئی چرچ آپ کس لیے آتے ہیں؟ بولو خیر. چرچ آپ عبادت کرنے آتے ہیں اور ورشپ عبادت کا حصہ ہے. یعنی آپ کی ذمہ داری ہے جب آپ چرچ میں آتے ہیں اور آپ ورشپ کے دوران مت خاموش رہا کریں. آپ یہ نہ سمجھے میری آواز اچھی نہیں، آپ یہ سمجھے میرا خدا اچھا ہے. آمین. آپ کی آوازوں پر خدا رہ جائے گا. خدا توتلی زبانوں کی بھی آوازوں کو جانتا ہے. موسیٰ باعث برکت تھا، زبان توتلی تھی اور خدا نے اس کے لیے
मददगार हारून को भेजा था। याद रखिए, आप और मैं शायद तोतले हो सकते हैं, लेकिन आपका जिंदा खुदा फिर भी आपको बरकत देने की कुदरत रखता है। इसलिए आपके लिए जरूरी है, जब आप चर्च में आए तो आपकी पहले जिम्मेदारी है आप नेगेटिविटी अपने माइंड से निकाल कर आए। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें, इनको अपनी जिंदगी से निकाल कर फिर चर्च में आए। और जब चर्च में आते हैं, आपका कदम रखना ही आपको बरकत देगा। और फिर जब चर्च में बैठे, आपकी जिम्मेदारी है आप वर्शिप में खुदा के हजूर ताली बजाकर गाकर उसके हजूर में अपना हिस्सा डालें। और ये हिस्सा आप उस वक्त डाल सकते हैं जब आप यूनिटी के अंदर रहें। मैंने देखा कई दफा वर्शिप हो रही होती है, लोगों के ख्याल कहीं दूर दूर पहुंचे होते हैं। किसी का ख्याल अपने रिश्तेदारों में पहुंचा, किसी का ख्याल अपने घर में पहुंचा, किसी का ख्याल किसी तरह पहुंचा। याद रखिए, आपका खुदा आपको जहन देने वाला, जब आप चर्च में आते हैं, आपकी यूनिटी ये होनी चाहिए, आपकी सोच एक हो जानी चाहिए, आपका दिल भी एक होना चाहिए। ये क्या है? वो सब के सब एक जगह जमा थे कि यक्का जब जमा थे, यूनिटी में थे, तो फिर क्या यक्का जग आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे आगे, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे क्या हो गया? गूंज गया। भाई मुझे बताएं, आप चर्च में आते हैं, हाँ जितने भी हैं, अगर यूनिटी के अंदर आ जाएंगे तो क्या आपकी यूनिटी से खुदा का घर नहीं घूम सकता? क्या आपकी यूनिटी से आपके बैठे साथ वाले पर्सन को आपकी वजह से रूह कुदस नहीं मिल सकता? रूह कुदस की हजूरी कसरत से काम करती है, लेकिन ज़रूरी है आप अपने जहन को उसके साथ मिलाएं और यूनिटी के अंदर है, इत्तेहाद के अंदर है। आगे, और उन्हें आग के शोला की सी फट जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आठ और ठहरी। उनमें से हर एक पर आठ ठहरी। जरा हम पीछे देखें तो लिखा है 120 लोगों की जमात थी। कितने लोगों की? उनमें चंद औरतें और मर्द कितने थे? हम जरा तरतीब देखें जरा। अब पहली जमात की तरतीब और जरा की तरतीब लिखा है, उनमें से 120 लोग और चंद औरतें। अब मैं यहाँ पर कहूँगा, इनमें से चंद मर्द, बहुत सारी औरतें, है? उल्टा हो गया ना सारा। आज जहाँ पर भी देखें आप जाएं, अब क्या नजर आता है? चंद मर्द नजर आते हैं। हालांकि बाइबल की तरतीब ये नहीं है। बाइबल की तरतीब ये है कि वहां पर चंद औरतें थी, लेकिन आज की तरतीब देखे चंद मर्द नजर आ रहे हैं, वो भी किस तरह वाले हैं? वो भी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते। आप के लिए जरूरी है कि आप चर्च के मेंबर हैं, आपकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए, आपके लोग ज्यादा होने चाहिए। लेकिन आज मर्दों को देखे हैं, काम भी नहीं मानते, पूरी फेर भी नहीं पहनी, है? काम कर करके भी नहीं पूरी पहनी, फेर भी कर। साथ अंदाजा करें, जरूरी है कि आप अगर चर्च की पहली जमात देखें, ये पहली जमात है जहां से नए अहदनामा की कलीसिया का आगाज हुआ। ये एक तरह की कलीसिया की बर्थडे भी है, ये एक तरह की कलीसिया की सालगिरह है जो हम याद में मनाते हैं कि ये पहली कलीसिया जिन पर रूह कुदस जो है वो नाज़िल हुआ। ये रूह कुदस की पहली भरी हुई कलीसिया है। और आज जरा आज की कलीसिया जो अपने आप को कलीसिया के मेंबर कहती है, जो अपने आप को आज कलीसिया कहती है, जरा आज अपनी कलीसिया अपने पर गौर करें, है ना? और रूह कुदस के साथ
भरी हुई कलीसिया नहीं, आज शायद टिकटॉक से भरी हुई कलीसिया नजर आती है। आज कजरिया पापा के बड़े भरी हुई कलीसिया नजर आती है। भाई आप चूजन पीपल हैं, वी आर चूजन पीपल, आप चुने हुए लोग हैं और चुने हुए लोगों को यूनिटी में आने की जरूरत है। आप क्यों अपने टिकटॉक का गलत इस्तेमाल करते हैं? मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ हूं। क्यों आप अपने स्टेटस का गलत इस्तेमाल करते हैं? भाई कलीसिया के लिए जरूरी है, शायद आपका मसीही लगाया गया स्टेटस ही दूसरों की जिंदगी को बदल दे। आप वो स्टेटस लगाएं जिस स्टेटस को देखकर गमज़दा ही तसल्ली पा जाए। आप ऐसा स्टेटस लगाएं जिस स्टेटस को देखकर शायद दुखी, परेशान, नीडी और बीमारी और मुश्किल और कर्जे और परेशानियों के अंदर जकड़ा हुआ पर्सन आपका स्टेटस ओपन करे और आपका स्टेटस ओपन करते ही उसकी मुश्किल का हल उसको मिल जाए, उसकी परेशानी का हल उसको मिल जाए, उसकी हर तरह के हालात का हल उसको मिल जाए। आप ये कर सकते हैं, आपके पास दुखों का इलाज है, वो खुदा का कलाम है। आपके पास खुदा के कलाम की मुख्तलिफ वर्सेस हैं। आप उन आयतों को लगा लगा कर, आप उन ज़बूरों को लगा लगा कर, आप उन गीतों को लगा लगा कर आप अपने खुदा के हजूर में खुशखबरी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये तजर्बा मेरे साथ हुआ तो मैंने इसलिए कहा। गीत फ्रांसिस फरोज का था और भाई सुनील ने वो गीत लगाया, बड़ा खूबसूरत था। और मैं परेशान था और जाते जाते मैंने जब स्टेटस देखा और मैंने फिर कहा कि ये ज़रा गीत का पूरे ज़रा लिंक मुझे सेंड करें। फिर यकीन माने मैंने वही गीत लगाकर गाड़ी में ही और सफ़र किया और दुआ की। खुदा ने उसी वक्त दिलेरी की स्पिरिट अता की। हमें ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने तजर्बा, मेरी ज़िंदगी में ये बहुत दफ़ा तजर्बा हुआ। कई दफ़ा ऐसी बस सामने लोगों की आ जाती है जिससे दिल सामान हो जाता है। तो कलीसिया यूनिटी के अंदर आए, इतराज़ ना करे कि पादरी साहब ने तवाला आता है ना, ये जो हाइड किया है वो भी बंद कर सकती है ना। कई दफ़ा अपने पादरी को आप मुझे तो हाइड कर सकते हैं पर खुदा की आवाज़ और खुदा को हाइड नहीं कर सकते, है ना। आप खुदा पर ज़रा प्राइवेसी लगा कर दिखाएं। पादरी ने तो ला नहीं, है ना। आप ज़रा खुदा को प्राइवेसी लगा के दें, भाई लगेगी नहीं। आप बाजार में चले जाएं, आप समुंदर की तह में चले जाएं, आप खुदा को कभी प्राइवेसी नहीं लगा सकते, है ना। आपका खुदा प्राइवेसियों को ख़त्म करने की कुदरत रखता है, लेकिन फिर भी वो आपकी प्राइवेसी रखता है। आमीन। फिर भी वो आपके गुनाहों को जानकर फिर भी वो उसकी क्या रखता है, पर्दा डालता है। इसलिए पहला काम आपकी मेरी जिम्मेदारी है, हम यूनिटी के अंदर आए, हम इत्तेहाद के अंदर आए और हमारी यूनिटी पूरी हो। और ईद पेंटिकोस्ट पर पहली जिम्मेदारी कलीसिया ने पूरी की है ना। कलीसिया ने कैसे जिम्मेदारी पूरी की है? पहले नंबर पर वो एक जगह जमा नहीं हुआ, पहले नंबर पर उन्होंने यूनिटी की है ना। यूनिटी के अंदर आकर, इत्तेहाद के अंदर आकर फिर उन्होंने कहा आओ सारे हम एक जगह जमा हो। और उन्होंने यूनिटी का, इत्तेहाद का मुजाहरा किया कि हम जो है यूनिटी के अंदर हैं। जैसा आपने कहा था वैसा पहला काम ईद पेंटिकोस्ट पर कलीसिया ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और जिम्मेदारी को पूरा किया और फिर पूरा करते हुए वो दुआ में ठहरे रहे। और फिर दूसरा काम जो अपना वादा यीशु मसीह ने पूरा किया, है ना। क्या इस कलीसिया के साथ
यीशु ने वादा पूरा किया, क्या बोर्ड मोहल्ले की कलीसिया इसके साथ यीशु मसीह वादा पूरा नहीं करेंगे? मुझे बताए, तब यीशु और था है? क्या अब यीशु और है? कलीसिया के सीखने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चों को यकीन माने हमने उसकी आदतों को खराब कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को सामने खड़ा करके उनके ऐसे ऐसे टिकटॉक बनाए जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ। हम अपनी फैमिली की बात करें तो हमने तो अपने पापा के सामने, अपनी मामा के सामने कभी टीवी भी नहीं देखा। टीवी भी लगा होना तो हमने कहा नहीं। मैं आज हैरान होता हूँ लोगों के जब हालात देखता हूँ कि अपने माँ बाप के सामने, है ना, मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ तो पेरेंट्स की मिस्टेक है, तो यहाँ औलाद को शर्म नहीं। दो चीज़ें हैं ना भाई, है ना। अब मैं ये तो नहीं कहता औलाद ही गंदी, ये आप ज़रा गौर करें अपनी ज़िंदगी पर। हमने अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को किस माहौल में ख़राब कर दिया, किस माहौल में उनको लेकर गए हैं। और उनके टिकटॉक देखें तो मैं हैरान हो जाता हूँ। हैरानगी इस बात की होती है, ऐसे ऐसे बेहुदा गाने लगाकर उनके टिकटॉक बनाए होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। क्यों अपनी नस्लें बर्बाद करने पड़ती हैं? अपनी नस्लों को आपने बर्बाद नहीं करना, अपनी नस्लों को अपने पास से बरकत करना हमें। और ये कैसे होगा, है ना? जब आप अपनी जिंदगी को खुदा के हजूरी में लेकर आएंगे। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमने अपने बच्चों को कैसा बनाना है और कैसा हम अपने बच्चों को बना रहे हैं। ये सुन लो, बोर्ड में लगे बच्चे वाह ही फेमस है, सानू भी लगता कि नहीं ये टिकटॉक के वाह ही फेमस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई दफ़ा दूसरे शहर से पोस्टें आ जाती हैं। हाँ, ये पता नहीं है, यही होता है ना। फिर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हमने क्या करना है, हमारी कलीसिया का म्यार कौन डाउन कर रहा है, कैसे हम अपने मराल को डाउन कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने जिम्मेदारी को पूरा किया और उसने रूह कुदस को भेजा। और फिर तीसरी बात, शागिर्दों ने भी, कलीसिया ने भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने गवाही दी, है ना। सब ने गैर ज़बान बोला, सबको रूह कुदस की नेमतें मिली। पता नहीं आज क्यों कई दफ़ा हमारे अंदर, और फेसबुक पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें, लोगों के एतराज़ात देखें, नहीं जी गैर ज़बानी बोलनी चाहिए। भाई अगर बाइबल में देखें तो ये पहली जमात है और उनमें चंद होते हैं और वाज़ह लिखा है उनमें मुक़द्दसा मरियम भी है। और इसका मतलब मुक़द्दसा मरियम ने भी उनके साथ मिलकर गैर ज़बान बोल कर दुआ की है। तो आज हमें किस बात का एतराज़ है ना? हम क्यों एतराज़ करते हैं? इसलिए हमें एतराज़ नहीं, हमें दुआ की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। आए, मैं चाहूँगा कि ज़रा आंखें बंद करें। अब देखते हैं कितनी हम यूनिटी के